Yeah, we are live Okay. now. So, okay, cool. Okay. Yeah. So, first of all, thank you so much for joining today. And I have a question. Like, first of all, I'd like to ask one question to you. That is, can you tell me something about your journey as in you pursued engineering first, and then you went into A, and then you switched to Rise from FTII. So, how steps went with you? Uh, I'm extremely sorry. So voice is constantly breaking constantly. Yeah. Am I audible now? Hello. Hello. Your voice is constantly breaking. I did not just ask actually. Yeah, your voice is muffled. I think if anybody, someone else problem is one. Okay, so am I audible now? Yeah, correct. Yeah. Okay, sir. No. Am I audible now? Yeah. Yeah, Grishma Didi, if you would like to continue, you may continue because there's some network issue in my. Okay, yes, Harsh, I was doing that only. I was just repeating your question on your behalf. Sir, he was asking, like, if you Yeah. can elaborate your journey, like, how did you begin and how did you proceed that way? Okay. So how I came in the industry, basically, that's Yes, what sir, you are asking. exactly, exactly. Yes, sir. Yeah. Yeah. I think the network issue is something really wrong with the. Anyway, yeah, so I did my engineering. Actually, I was interested in cinema since very early. I never thought I was कि मैं भी उसमें जा सकता हूँ because I belong to a very small village which hardly have a population of 2000, right? वहाँ पे मेरा scope था नहीं. Please tell me, when voice is breaking or somebody is not able to hear. So otherwise it will be very one-sided conversation. कुछ पता नहीं. Am I Yes, sir. audible? Hello. Yes, sir, you are audible Hello. now. Yeah. Okay. So yeah, that yeah. yeah. So मैं तभी नहीं सोचा था कि I want to be part of industry. But after engineering and last semester of it, one of my friends told me about FTI. मुझे पता कि ऐसा भी कुछ है जहाँ पे जाके आप प्रॉपर सिनेमा की ट्रेनिंग ले सको. बट बाय द टाइम आई चेक द वेबसाइट 2 साल का एडमिशन खत्म था एंड फॉर द नेक्स्ट ईयर का मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था बिकॉज आई हैड टू स्टार्ट माय वर्क. बट इन इंजीनियरिंग रियलाइज कि मुझे प्रोग्रामिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं है. सो आई जॉइन द मैनेजमेंट प्रोग्राम एमबीए किया. And after MBA, when I was working as a consultant, I did job for 1 year actually after MBA. And in that 1 year, my profile was a consultant. So in this consultant, what you do is that you analyze businesses, you know, entrepreneurs and all. So वो करते करते realize हुआ कि it's become very hypocritical. Advice दे रहे हो कि how to follow the team, how to achieve that. आप खुद अपना नहीं कर रहे. So I thought कि let me try one time and if I fail I fail. उसमें क्या फर्क है. Otherwise मुझे लगा कि lifetime एक guilt सा रह जाएगा कि I never tried basically. So that year I applied and I got in. And once I came into FTI, my whole world is changed. The real journey began from there only. And मेरा direction में हुआ था. I was expecting
exposed to world cinema and all the cinema I've never seen basically. The Hollywood blockbuster, you can say. Uh, तो sir, पढ़ने के बाद my understanding entirely change about literature and everything because आप बहुत लोगों के साथ ऐसा interact करते हो और यही चीजें आपको धीरे धीरे अंदर से change करती है. Okay, so did you write? Did you Yeah. start Somebody writing was in your saying something. early age? Am I audible? Am I audible? Hello. Yeah. Am I audible? yes, yes, Okay. yes. So Yeah, you as you said that you are. started, you thought of joining FTI after engineering. So did you start writing in your Yeah, early age, at your early age, or after engineering? yeah. Uh, so you're not audible. Yeah. Also, sir, your voice is breaking. There is some network issue, maybe. No. वो तो लीव ही हो गए.
बढ़ाना है, हाउ टू मोटिवेशन प्रोग्राम्स एंड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एंड एवरीथिंग, राइट? So the core idea was to push them towards what they love to do, right? So मुझे उसमें काफी hypocrisy feel होने लगी because I deep down I realized that कि मुझे तो ये नहीं करना है. I'm really interested in cinema, but I was not confident enough कि मैं जाके कुछ कर सकता हूँ कि नहीं, right? So वो जो एक अंदर का गिल्ड था उसी ने मुझे पुश किया and that helped me to came out of it. And once I enter in the campus, उसके बाद तो कभी एक दो दोबारा ख्याल भी नहीं आया कि भाई वो जॉब क्यों छोड़ा. एंड आई नो सो मेनी पीपल, क्योंकि मेरा केस तो बहुत ही, आई वुड से कि मेरा केस इतना कुछ है ही नहीं, बिकॉज मेरे सामने ऐसे लोग थे जो 15-15 साल जॉब करके अपना करियर छोड़ के कैंपस में सिनेमा परस्यू करने के लिए आए थे. सो आई थॉट कि या व्हाट आई डिड वाज राइट बेसिकली. अच्छा हुआ मैं जल्दी आ गया 1 साल में, अदरवाइज कहीं ना कहीं लाइफ में ये टर्न लेके वापस आने का मन करता. सो इट वाज गुड. Exactly, I agree with you and I'm happy कि आपने काफी जल्दी इस चीज में स्विच किया and ज्यादा उतना दिक्कत नहीं हुआ. So I would like other team members to ask their question and I would like Ritik Jain to put forward his question. Ritik, you are on mute, I guess. Yeah, I'm sorry. Namaste sir, मैं Ritik from Sagar. Okay. सर मैंने पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी जैसे मैं देख रहा हूँ कुछ जो OTTs या फिर कहना चाहिए वेब सीरीज बनती हैं, मतलब व्हेन आई वाज इन कॉलेज 2013 से 17, सो कुछ प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा पड़े हुए लाइक AIB, TVF एंड ऑल दैट. सो हमने देखा वो छोटी छोटी चीजों को भी एक बहुत इम्पैक्टफुल एक चीज बना देते थे. जैसे मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें जीतू भैया थे, वो 10 रुपए का क्यूटियापा था एंड हम लोगों ने वो स्किट भी किया था जिसमें मैंने जीतू भैया का रोल प्ले किया था और वो बहुत छोटी सी चीज थी लेकिन वो बड़ा मजा आया उसको करने में. सो ये चीजें अचानक से ऐसे बढ़ रही हैं, तो उसमें इन चीजों को लिखने में मतलब कैसे आप इन चीजों को अप्रोच करते हैं जब राइटिंग में इन चीजों को लेकर लिखते हैं, क्योंकि वो बहुत ही नॉर्मल एक हल्के सब्जेक्ट होते हैं लेकिन फिर भी आपको बहुत अच्छे से दिखाना है. सो ये क्या तरीका होता है, आप क्या इसमें अप्रोच लगाते हैं? सर आपकी आवाज नहीं आ रही. सर योर वॉइस इज सी टू बी TVF की भाषा में या जो भी छोटे छोटे बिल हैं. कैन यू हियर मी? हेलो. या इट्स ऑडिबल. हेलो. या ओके. ओके, सो मैंने ना स्केच लिखे नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो स्केच का जहां तक मैं जब TVF में था और बाकी लोग का भी, बट आई डिड ऑब्जर्व कि व्हाट दे डू एंड ऑल, राइट? सो स्केच बोलो या आप जो भी बोलो, उसका डीप इनहेरेंट इमोशन ना मोस्टली ह्यूमर होता है. ह्यूमर विद द अब्सर्डिटी ऑफ लाइफ, चाहे आप 10 रुपीज या जो भी आप बोल रहे थे वो, या फिर कैसा कोई भी हो, राइट? सो उसका डीप रूट आप सर्च करने जाओगे तो 50s और 60s के जो सिटकॉम थे ना, वहां से आपको मिलेगा, राइट? देयर वाज अ वेरी फेमस सिटकॉम, आई एम नॉट फॉरगेटिंग नेम, आई लव लुइस. आई लव लुइस शायद, अगर थोड़ा मेरा नाम, आई हैव रियल बैड मेमोरी विद नेम्स. वो 60s और 50s में बहुत पॉपुलर वो शो हुआ था बेसिकली. तो वो सिटकॉम से इसका जेनेसिस आता है. सिटकॉम्स एंड जो लेट नाइट शोज US में होते थे, वहां से इंडिया में इसका वो जो जेनेसिस है वो आया है, राइट? तो वो वही करते हैं कि आपका कोई भी रिलेटेबल जो इवेंट है लाइफ का, लाइक they did very successful this series called Chai Sutta Chronicle, right? If you have seen it, I don't know, right? Yeah. So वो सब जो है उसका उसका जेनेसिस वहीं से आया है. You take day to day life conversation, you take day to day life के जो इवेंट है उसको लेके आप उसमें ह्यूमर ऐड करके एंड उसको आप फन बना लेते हो, राइट? एंड उसमें कोई फिल्म जैसा 3 act स्ट्रक्चर या वैसा नहीं होता है, बट थोड़ा अब्सर्डिटी एंड समथिंग हैज चेंज, वो इमोशन एक डालने की कोशिश की जाती है. बाय एंड ऑफ द स्केच आपको हल्का फील होता है कि जो एक स्टेटस को है जहां से ये शुरू हुआ था वहां पे वो घूम के या तो वापस आ जाते हैं या वो ब्रेक हो जाता है. सो ये उनका मेथड रहता है. उसको अप्रोच करने का ऐसे
बाय बुक कोई तरीका नहीं है। म्यूट यू आर ऑन म्यूट। I'm sorry again. So, that's yes, fine. sir, that was a really nice answer मुझे। एंड मैं डेफिनेटली वो 1960 से कुछ सिटकॉम्स को एक बार देखना चाहूंगा। वो आपने जो नाम बताया, आई लव यू, Do सर्च that. करो। You do Yeah. that. तो अभी आपका सर जैसे नया प्रोजेक्ट आने वाला है नेटफ्लिक्स पर, जो मूवी आने वाली है, सो कितना डिफिकल्ट होता है एक बुक को पर्दे पर पोर्ट्रे करना? मतलब एक नई कहानी जो आप खुद लिख रहे हैं, सो आप यू कैन क्रिएट योर ओन सीन्स और आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, लेकिन एक बुक है एंड आपको पता है, सो क्या या फिर हमें कुछ यानी कि फायदा हो जाता है कि हमारे पास पहले से एक स्टोरी है, सो क्या आप पाते हैं उसको एक बुक को पर्दे पर लाने के लिए? जब आप एक बुक को स्क्रीन पे अडॉप्ट करने जाते हैं, उसके एक अपने ही चैलेंजेस है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आप एक ओरिजिनल मटेरियल को आपको एक रिस्पेक्ट दिखाना है, प्लस आपको उसके साथ हो सके उतना फेथफुल रहना है। अब यहाँ पे ना, जिसने भी ओरिजिनल मटेरियल लिखा है, जैसे आप गर्ल ऑन द ट्रेन की बात करें, तो उसमें हमने कुछ एडॉप्ट नहीं किया। आई जस्ट रोट को डायलॉग हमने को राइट किया है उसके। बट जो मेरा अर्लियर फिल्म था सीरियस मैन, वो हमने किया है अडॉप्ट। तो उस फिल्म में मनु जोसेफ जो बुक के ऑथर थे, ही वाज वेरी cooperative and very open to it. So he gave us the liberty to change the material almost 70%. Right? We only took the DNA of the story. बाकी जो हम वर्ल्ड क्रिएट कर रहे थे, उसके लिए हमारे पास कंप्लीट लिबर्टी था अपने हिसाब से कैरेक्टर को रिबिल्ड करने के लिए, कैरेक्टर का एटीट्यूड, कैरेक्टर का आर्क वो चेंज करने के लिए, स्टोरी बदलने के लिए। जो कोर आइडिया था वही हमने उनका लिया। अभी ये केस हर जगह पे नहीं होता है। समटाइम्स द ऑथर इज वेरी I say convince on his material कि he does not want to appear, and you should respect that. जैसे कि अगर आप हैरी पॉटर की भी बात सुनते हैं, देन यू नो कि जेके रोलिंग ने कभी उस चीज में बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया है कि उसके बुक से बहुत ज्यादा आप चेंजेस कर पाए। जबकि गेम ऑफ थ्रोन के केसेस में काफी सारे चेंजेस होते रहते हैं। वो थोड़ा मटेरियल, इनिशियल बुक का मटेरियल वो लोग अर्ली सीरीज में डाल देते हैं, थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है। सो यहाँ पे ना बुक के ऑथर और जो स्क्रीन राइटर है, उनके बीच का एक अनसेड रिलेशन या जो पहले से प्री डिसाइडेड जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो मैटर करता है। उसके बाद चैलेंजेस आती है कि फिर आप उस वर्ल्ड को कैसे परसीव करते हो। उसमें थ्रेट ये रहता है कि किसी भी बुक का ना एक लॉयल ऑडियंस होता है, एंड यू हैव टू बी वेरी रेडी फॉर इट, बिकॉज दैट ऑडियंस गोइंग टू रिएक्ट नो मैटर how good job you does. There is still people, a large amount of people who loves Harry Potter books. They hate films, right? They did not like films at all, right? So ये होता है। तो आपको वो एक ओपन माइंड से चलना है, बिकॉज इट्स लाइक इट्स वेरी टाइट रोप। आप अपना वर्ल्ड उस पे एक बिल्ड करने की ट्राई कर रहे हैं, और वो करना इसलिए जरूरी भी हो जाता है आपके लिए, क्योंकि वॉट एवर रिटन इन द बुक इट वॉन्ट वर्क इन द फिल्म अगर आप कंप्लीटली वही का वही लेके आओगे। बिकॉज आपके पास 500 पेजेस से जो कोई भी बंदा शायद एक स्ट्रेंथ में नहीं पढ़ता है मोस्टली। अगर कोई हार्डकोर बुक लवर है तो शायद पढ़ता होगा, बट I can say we can say with little confidence 60% लोग 2-3 ब्रेक्स में बुक्स पढ़ते हैं if it's more than 500 pages, right? Yeah. तो आप जो अर्लियर आर्क थे ना, पहले 100 पेजेस में, 200 पेजेस में, वो बाय द टाइम जब आप 400 पेजेस पे पहुंचते हो, तो आपके दिमाग में उतनी मेमोरी शार्प नहीं रहती है। सिनेमा में आपके पास वो लिबर्टी नहीं है। फिल्म जब शुरू हुई है, आपको पूरा का पूरा याद है कि 2 घंटे पहले या 1 घंटे पहले क्या हुआ था। यू आर सो इनग्रोस इन दैट वर्ल्ड, यू आर सो इनग्रोस इन दैट जर्नी कि आप वहां पे ज्यादा चिट नहीं कर सकते। आप
तुमने वासु को दो दो क्यों भेजी यार? और उसने भेज दी होगी उनको आईडी। वो हमने भेजी ना अभी, तुमने वासु को भेजी, तुम झट से डाल दी ग्रुप में। Hello, sir. Yeah, hi. Yeah. Really sorry for the connection disturbance. No, it's fine. It's happened. Yeah. Okay, sir. So my next question was that जब हमने आपका पोस्टर अपने सोशल मीडिया पे डाला, सो नवागत सर ने बताया था that you and नवागत सर was the roommate in FTII. सर अभी जैसे नवागत सर सिनेमाटोग्राफर एंड डायरेक्टर, मतलब दोनों फील्ड में कर रहे हैं, एंड यू आर आल्सो वर्किंग सो गुड इन दिस फील्ड, राइटर डायरेक्टर, सो व्हाट डू यू डिस्कस टुगेदर, लाइक कोई प्रोजेक्ट जिसमें आप लोग साथ में आने वाले हो, या फिर हाउ डू यू डिस्कस इधर, लाइक मैं इस प्रोजेक्ट पे कुछ काम कर रहा हूँ, तुम अच्छा कर रहे हो, मैं दूसरा करूंगा, सो व्हाट इज द कन्वर्सेशन एंड what is the big role of FTII in this particular career that you are having right now? Yeah, we do jam up in most of the project, especially the personal project. We don't do jamming on the somebody else project. Like वो अगर किसी as a cinematographer किसी और का अगर project कर रहा है, like पाताल लोग कर रहा है, तो वो हम कम discuss करते हैं, because उसका एक जो सर्कल और ग्रुप है वो अलग है. मैं सीरियस मैंने अगर लिख रहा हूँ तो वो मैं कम डिस्कस करता हूँ, बट जो हमारे पर्सनल प्रोजेक्ट है वी डू डिस्कस इट ऑल द टाइम. और वो दोनों तरह के जैमिंग होता है कि हाउ टू अप्रोच इट, व्हाट द वे इट शुड बी, राइट, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ कैमरा बट इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग एज वेल. तो वो वैसा होता है. प्लस हाँ, कैंपस का इसीलिए बड़ा हाथ रहता है बिकॉज दैट्स हाउ दे टीच यू. कि जब आप कैंपस में होते हो तो इट्स नॉट ओनली अ डायरेक्टर्स प्रोजेक्ट. बाहर आके यू रीड दिस के अ फिल्म बाय और व्हाटएवर इट इज, बट ट्रूथ इज के फिल्म अलोन डायरेक्टर कैन नॉट मेक. उसमें बाकी के टीम मेंबर का भी उतना इक्वल सपोर्ट एंड कंट्रीब्यूशन रहता है, राइट. तो वहां पे 4 लोगों की टीम बनाई जाती है, डायरेक्टर, कैमरामैन, साउंड पर्सन एंड एडिटर. तो वो चारों मिलके ही उस प्रोजेक्ट का ऑल इन ऑल जो भी स्ट्रक्चर है, लाइक शूटिंग लोकेशन, यू गो रेकी टुगेदर, राइट, यू प्री प्लान टुगेदर, एंड शूटिंग में भी वहां पे आप ही को ही उसका पूरा प्री प्रोडक्शन एंड बाकी सब करना है, राइट.
वहां पे कोई ईपी नहीं है आपके पास, तो वो सब ही चीजें आपको करनी है। तो हाँ, आप एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट उनके साथ डिस्कस करते हो आप अपने टीम मेंबर्स के साथ, तो वो एक कांस्टेंट कन्वर्सेशन रहता है। Got it, sir. Got it. Yes, sir. And so your one favorite writer जिसके पास आप बार बार लौट जाते हैं जब आपका मन थोड़ा सा रिलैक्स करने का करता है, या फिर कभी जैसे कहते हैं ना कि आज मन अच्छा नहीं है, so let's read this thing. So who is that particular writer? वैसा एज सच ऐसा नहीं है कि मुझे ये पढ़ना, बट आई कीप फाइंडिंग माई सेल्फ रीडिंग स्टोरीज ऑफ निर्मल वर्मा। आई थिंक प्री इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद उनके जैसा शॉर्ट स्टोरीज हो या फिर एक सर्टन वर्ल्ड को क्रिएट करने का, ही इज वेरी वेरी विजुअल राइटर, राइट? नॉट इवन उनका एक इनर इमोशन तो एक्सप्लोरेशन होता ही है डेफिनेटली, बट एक जो एक वर्ल्ड का एक सर्टन फील के साथ जो हम विजुअल देखते हैं वो उनकी कहानियों में बड़ा अद्भुत होता है। सो आई कीप फाइंडिंग माई सेल्फ रीडिंग हिम। Okay, sir. मैं भी उन्हें पढ़ने की पूरी कोशिश करूंगा। And looking it's forward you for should yeah, definitely. Looking forward for the new project, sir. And मैं मेरे other teammates से चाहूंगा कि वो प्रश्न करें। Thank you, sir. Hello, sir. Hello. Yeah, hi. Sir, I'm Anmol, and I believe I've read, not believe, I've obviously read The Girl on the Train, and I've liked it very much since it's a psychological thriller, as they say it. Yeah. And you've done a project. Your latest project is on that. So what I basically want to ask you is that this book has a lot of minute details. A lot of minute details, and these minute details make a very important portion of the story. Symbolic or not, but they, they make a very important part. So as a director, how did you capture those minute details, or did you find some other thing to symbolize those minute details through? I mean, obviously you would have read the book since you have directed the movie, so you know how minute I didn't directed the movie actually. I didn't. The Girl on the Train is directed by Ribhu Dasgupta. Me and my writing partner Gaurav Shukla, we did write dialogues for that. Yes, I'm so sorry. So in writing the thing, how did you capture the minute details of the book, since you would have already read it? Right? Yeah. So in that case, I would say, have you seen the film, the original version, which was Emily Blunt was starred? Yeah. No, I haven't seen that version, but I've just read the book. That's it. Okay. So उसमें अप्रोच मेनली ये रहता है कि क्योंकि आप उस वर्ल्ड को अभी सेकंड टाइम ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। एक टाइम उन डायरेक्टर्स और उन लोगों ने ट्रांसफॉर्म कर दिया है, राइट? एंड नाउ यू आर डूइंग इट इन टर्म्स ऑफ इंडियन वर्जन, जो आपका वर्जन है, राइट? तो उस हिसाब से आपके कैरेक्टर्स की जो नेचर है उसमें भी चेंज आता है, एंड रिबू डिड चेंज लिटिल एंडिंग पार्ट ऑफ इट, एंड थोड़ा स्टोरी उसने वेरी भी किया है, राइट? सो उसमें बुक में जो माइन्यूट डिटेल होती है ना, सारी की सारी, उसको इंक्लूड करने का कभी भी अटेम्प्ट नहीं होता है, और वो आपसे फिजिबल भी नहीं होगा। अगर आप करने जाओगे तो आप खो जाओगे। एंड ऑफ द डे आपके पास बहुत ही लिमिटेड, एज आई टोल्ड यू, कि बुक में आपके पास 500 पेजेस है, राइट? विथ ऑल डिस्क्रिप्शन एंड टाइम एंड बुक का जो एक लिटरेचर लिबर्टी जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत ही वास्ट होती है। आप कैरेक्टर यहाँ पे बैठा है और नेक्स्ट मोमेंट आप उसको स्पेस में सोचने के लिए भेज सकते हो। स्टार्स में वो कहीं पे मूव कर रहा होता है, या फिर वो रैंडम 20 years बैक का चैप्टर आ जाता है, उसकी चाइल्डहुड की कोई ग्लिम्स आ जाती है, राइट? तो भी आपको कोई भी डिस्ट्रप्शन इन द स्टोरी फ्लो फील नहीं होगा जब आप लिटरेचर पढ़ते हो तब। लेकिन फिल्म में अगर आप ऐसा जंप लगाओगे तो इमीडिएटली ऑडियंस बैक हो जाएगी, राइट? कि व्हाट द हेल इज हैपेंड, राइट? तो आपको वो फ्लो में ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए जो माइन्यूट डिटेल आप बोलते हो वो अगर सीन में फिट हो रही है, राइट? जब आप सीन को एक हम उसको मिज़ॉन्सेन बोलते हैं, तो वो एस्टैब्लिश के टाइम पे अगर वो फिट हो रही है तो ही ली जाती है। अदरवाइज आपका प्राइमरी फोकस कैरेक्टरिस्टिक और स्टोरी लाइन पे रहता है। हर चीज को इंक्लूड करने की कोशिश नहीं की जाती, जो कि वो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है।
So then, how did you and your partner writer, I would say, fit in the essence of all the psychological aspect in the movie? So see, psychological aspect is not that minute detail. Is a primary the action and the decision the character takes, right? And why the character is doing the way she is doing. तो वो जो है वो स्टोरी में ऑलरेडी लिया गया होता है. वो जो प्राइमरी एक्शन है, प्राइमरी मोटिवेशंस है कैरेक्टर के, वो आपने अडॉप्ट कर लिया है. When you say the minute detail, let's just say the character has a very keen habit to drink 2 glasses of water soon as she wakes up from the bed. अब इसका स्टोरी में कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है until and unless उस चीज का स्टोरी में कंट्रीब्यूशन नहीं होता है. इन गर्ल ऑफ द ट्रेन में उसका प्राइमरी नेचर का उसका कंट्रीब्यूशन क्या है कि वो विंडो के पास बैठती है और जितने भी घर है उसको कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करती रहती है कि उसके अंदर क्या है. तो वो चीज हमने स्टोरी में ले लिया है, राइट, बिकॉज उसका स्टोरी में कंट्रीब्यूशन है. लेकिन जिस एस्पेक्ट का कोई लेना देना नहीं है, जिससे हमारी कहानी आगे नहीं बढ़ रही है, उसको नहीं लिया जाता. तो जो अब साइकोलॉजिकल टॉर्चर या साइकोलॉजिकल जो उसका कॉम्प्लिकेशंस है वो पार्ट आ जाता है. वो तो एक मोटिव हुआ उसका जिससे उसका पूरा साइकी बिल्ड हुआ है, तो वो लिया जाता है. सर, और एक और क्वेश्चन कि आपको इस बुक में से आपका सबसे फेवरेट पार्ट या फिर द पार्ट व्हिच अपील्ड मोस्ट टू यू, व्हिच वाज दैट वन? आई थिंक सी एडेप्टेशन और कोई भी कहानी, स्पेशली इन एडेप्टेशंस, गर्ल ऑन द ट्रेन का मैंने एज आई टोल्ड यू मैंने सिर्फ डायलॉग्स लिखे हैं. तो मैंने स्टोरीज उसका नहीं लिखा है. स्टोरीज जो रिबो ने ही लिखा था उनका, और जो भी उनका स्क्रीन प्ले था. डायलॉग्स आप सिर्फ कन्वर्सेशन बिल्ड करते हो. लेकिन आई हैव सीन द फिल्म एंड आई रेड द बुक एज वेल, राइट. सो फेवरेट पार्ट एज सच वो मैं जब भी किसी प्रोजेक्ट को एज अ राइटर अप्रोच करता हूँ तब मैं ये फेवरेट वाले जोन को ना बोलने की ट्राई करता हूँ. अदरवाइज क्या हो जाता है, बिकॉज यू लाइक दैट पार्ट you tend to become very softer towards it. I say in the case of the adaptation, sometimes in the screenplay you have to be very brutal. You have to kill your darlings, as simple as that. हमारे पास in case of Serious Man, because हमने Serious Man का स्टोरी और स्क्रीन प्ले दोनों किया है, तो मैं आपको उसका एग्जांपल दे सकता हूँ. हमारे पास ऑलमोस्ट 4 स्क्रीन प्ले जितना मटेरियल था. यानी कि जो भी आप स्क्रीन पे सीन्स देख रहे हो उसके हमारे पास 4-4, 5-5 वर्जन थे. और कुछ वर्जन हमको ज्यादा अच्छे लगते थे जो हम स्क्रीन में नहीं डाल पाए, बिकॉज वो स्टोरी और फ्लो में फिट नहीं होता है. सो एट दैट टाइम यू नेवर थिंक कि ये मेरा फेवरेट है. अगर आपने सोच लिया ना कि ये मेरा फेवरेट है, तो आप उसके ऊपर एक डिस्टेंस से जो आपको डिसीजन लेना है वो नहीं ले पाओगे. सो आई ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ नॉट टू गेट अटैच विथ वॉट एवर मटेरियल आई एम वर्किंग ऑन. Okay, so if you don't look at it from a writer's perspective, then sorry. If you don't look at Girl on the Train from a writer's perspective, then what? You have read it, so you know. Yeah. So correct. limited Yeah. the perspective. So I think for me it's that opening which hooks me. To be very honest, I never find that kind of very precise briefing. Sometimes we call it in cinema you have liberty of dialogues, but इसमें जो एक psyche का जो description आपका आता है, right? वो I find it very amazing. The opening sequence of the book, when she is there. So I think that one was my yeah. Thank you, sir. That's it. Yeah. Sir, I have a question. That when film industry में दो तरीके से लोग एंटर होते हैं. एक तो ड्रामा स्कूल से, मतलब प्रॉपर ट्रेडिशनल वे की प्रॉपर लर्निंग एंड प्रैक्टिस 2 साल की डिग्री लेके एंड दे एंटर एज यू डिड. एंड द सेकंड वे इज डायरेक्टली समहाउ विदाउट एनी प्रायर ट्रेनिंग. तो दोनों में मतलब ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली क्या फर्क होता है अप्रोच करते समय किसी भी मूवी को, किसी भी एक्टिंग को या राइटिंग को, किसी भी वे में? क्योंकि मतलब अगर टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट माय क्वेश्चन, लाइक कुछ लर्निंग्स होती हैं जो शायद अनलर्न करनी पड़ती होंगी जब हम प्रैक्टिकली काम करते हैं. तो उसको कैसे
टैकल करते हैं? सी जब आप फिल्म स्कूल से आते हो ना, तो आपको सिनेमा लर्निंग अनलर्न नहीं करनी पड़ती है, आपको अनलर्न करनी पड़ती है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट? सी फिल्म स्कूल में जैसे लेट जस्ट से कि मेरा जो फाइनल प्रोजेक्ट है, वी इन एफटीआई वी यूज्ड टू हैव अ 15 मिनट प्रोजेक्ट फाइनल, जो आपको 15 मिनट का फिल्म सबमिट करना है, राइट? इन दैट प्रोजेक्ट आई हैव अल्टीमेट लिबर्टी, राइट? एज अ डायरेक्टर व्हाट आई हैव टू गिव इट टू माई टीम इज के साउंड डिजाइनर को इनफ स्कोप मिले साउंड रिकॉर्ड एंड डिजाइन करने का, एडिटर को इनफ एक स्टोरी मिले स्ट्रक्चर बिल्ड करने का, बिकॉज यू आर लर्निंग, नोबडी इज टेलिंग यू के you have to deliver a masterpiece, right? You are not accountable to anyone. तो आपको एक अल्टीमेट लिबर्टी मिलती है वहां पे, एंड आप बहुत ही उस क्राफ्ट को प्योरिस्ट वे में अप्रोच करते हो, बहुत ही प्योर फॉर्म में, राइट? आप किसी भी चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हो, बिकॉज यू आर इट्स अ हार्डकोर पैशन थिंग। बाहर जब आप आते हो तो जो अनलर्न करना पड़ता है ना, वही ये कई लोगों को जो लोग नहीं कर पाते हैं, जो थोड़े शॉक हो जाते हैं, वो है यही कि compromises. In film school, we does not move forward. Even we take 20 shots or 20 retake or 100 retake, let's just say 50 retakes sometimes. It does not matter. No, you take as much as you want, right? आपका एक टाइम लिमिट वहां पे सेट है, राइट? आपको जो भी 4 या 5 दिन या 10 दिन जो भी आपको मिल रहे हैं, उसमें आपको फिल्म डिलीवर करना है, लेकिन फिर भी आप चाहो तो उस बाउंड्रीज में रह के आप पूरा उसको प्योर फॉर्म में अप्रोच कर सकते हो। जब आप बाहर आते हो तभी उसमें कमर्शियल लायबिलिटीज बहुत बढ़ जाती है, राइट? सो बहुत सारे लोग जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती है उसको भी आपको ओके बोल के आगे बढ़ना पड़ता है। सो ये बहुत बड़ा एक अनलर्निंग होता है। एंड बाकी तो मुझे नहीं लगता यार कि, और स्पेशली टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज जब इंटरनेट एरा में इतना सारा डेटा और वो सब अवेलेबल है बाहर टाइम पे, राइट? सो आई डोंट थिंक सो कि इफ समबडी इज कमिंग फ्रॉम नॉट फिल्म स्कूल बैकग्राउंड ही शुड बी फील एनी इन्फीरियर और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज यू कैन लर्न एवरीथिंग फ्रॉम इंटरनेट राइट नाउ। बेस्ट ऑफ द बेस्ट फिल्म स्कूल के जो भी कोर्सेस है आपको यहाँ पे मिल जा रहा है, सारे मास्टर क्लासेस है अवेलेबल, राइट? ऑल मटेरियल इज देयर। अगर आपके पास वो लर्न करने का पैशन और जज्बा है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। फिर वो ग्राउंड में जाके तो आपकी मेहनत पे है। सर एक क्वेश्चन और था कि किसी भी, जैसे आपने स्क्रीन प्ले राइटिंग किया है, तो जब हम कोई प्ले लिखते हैं, कि मैंने कुछ स्ट्रीट प्लेज लिखे हैं अपने कॉलेज में, मैं अपने स्ट्रीट प्ले सोसाइटी का मेंबर हूँ, तो उसमें स्क्रिप्ट में मैं स्क्रिप्ट राइटिंग वाले बैच में मैं पार्ट लेता हूँ मेनली। तो जब हम कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उसमें जब कैरेक्टर को डिफाइन करना होता है, किसी भी कैरेक्टर को, उसका एक कहते हैं ना इंट्रो देना है, वो आपकी अप्रोच कैसी होती है किसी भी कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए? कई बार राइटर डायरेक्टली पूरा इंट्रो एक बार में दे देते हैं, कई पार्ट्स में देते हैं, तो आपकी अप्रोच क्या होती है किसी कैरेक्टर को डिफाइन करने, इंट्रोड्यूस करने में? ये यार फिल्म एंड स्टोरी टू स्टोरी डिफर करता है। कुछ में आप ट्राई करते हो कि पहले ही सीन में आप सब बता दो हु दैट कैरेक्टर इज, राइट? सो कई बार स्पेशली जो फिल्म का ओपनिंग सीन है आपके प्रोटोगनिस्ट का, जिसमें आपके अपने प्रोटोगनिस्ट को पहली बार मिल रहे हैं, राइट? आप कोई भी अच्छी फिल्म का एग्जांपल ले लीजिए, स्पेशली मेन स्ट्रीम सिनेमा में आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है, तो आप पहले ही सीन में ट्राई करते हो कि आपका कैरेक्टर जो भी है, जो भी उसका बिलीफ है, उसको आप 1-2 सीन में ही सेट कर दो, ताकि आप डायरेक्टली जो मेन स्टोरी लाइन है उसमें जंप कर पाओ, राइट? अभी अगर आपका अप्रोच एंड फिल्म मेकिंग का थोड़ा स्टाइल डिफर है, राइट, द पैरेलल सिनेमा लिटिल बिट आर्ट हाउस है, तो आप स्लोली अनफोल्डिंग कर सकते हो। जब फिल्म लाइक लेट्स जस्ट से विंटर स्लिप, आपने देखा है? नूरी बिल सलम का एक बहुत ही अमेजिंग फिल्म है, यू शुड वॉच इट इफ यू हैवंट, विंटर स्लिप। ओके, आई विल श्योरली वॉच इट। अभी तक या सो इट्स फाइन इफ यू हैवंट सीन इट, बट ऐसी जो फिल्म्स हैं उसमें पास आपके पास टाइम काफी है, यू आर नॉट बाउंड बाय दैट रिस्ट्रिक्शन ऑफ टेलिंग स्टोरी इन पर्टिकुलर टाइम। मेन स्ट्रीम में तो आपके पास 15 मिनट में मेन स्टोरी शुरू हो जानी चाहिए, 30 मिनट में फर्स्ट एक्ट खत्म होता है, एंड देन यू जंप इन सेकंड एक्ट, थर्ड एक्ट में क्लाइमेक्स के ऊपर आपके पास जाना है। तो आपको कैरेक्टर को एक्सप्लोर करने में उसकी जो हिडन इनर वीकनेसेस है वो आप एंड के लिए थोड़ा बहुत रख सकते हो, बट बाकी तो आपको बहुत इनिशियल स्टेज पे ही बता देना पड़ता है।
तो मेरा जो अप्रोच रहता है वो वैसे ही रहता है कि मैं कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ. अगर मेरा खुद का प्रोजेक्ट है देन आई विल टेक सम टाइम एंड आई रिवील द रियल नेचर ऑफ कैरेक्टर स्लोली. एंड अगर वो किसी और का है एंड वी आर बाउंड और स्टोरी हैवी है, राइट, जो हम प्लॉट हैवी फिल्म्स बोलते हैं, या फिर प्योर कुछ फिल्में एकदम कैरेक्टर ड्रिवन होती है, स्लो चलती है, उसमें आप थोड़ा लेट बैक रह सकते हो, लेकिन प्लॉट ड्रिवन फिल्म में आप नहीं रह सकते, उसमें आपको जल्दी करना पड़ता है. एग्जैक्टली. तो सर एक क्वेश्चन है कि जैसे कि किसी भी एज अ डायरेक्टर अगर आप जैसे अभी आपने ज्यादा समय नहीं हुआ आपको डायरेक्शन आए हुए, तो कई बार होता है ना कि जैसे आपने सीरियस मैन में काम किया, टू बी वेरी स्पेसिफिक, तो नवाजुद्दीन सर जो हैं उनके साथ काम करते समय आपका कहीं ना कहीं वो एक फैन बेस होता है ना उस कैरेक्टर का, मतलब उनका एज एन एक्टर एक फैन बेस है. आई होप यू वुड श्योरली बी अ फैन ऑफ हिम. तो आपको उनको डायरेक्ट करना है, तो क्या केमिस्ट्री होती है एज अ फैन एज वेल एंड एज डायरेक्टर टू, तो क्या कैसे वो सब हो पाता है? वो पहली 2 मीटिंग्स में होती है. जब पहली बार आप मिलते हो आपके अंदर वो एक्साइटमेंट और वैसा होता है. सेकंड मीटिंग से आप कलीग बन जाते हो, बिकॉज वो भी काम करने के लिए आए हैं, आप भी वहां पे काम करने के लिए. अगर आप हमेशा फैन बन के रहोगे यू वॉन्ट एबल टू मूव फॉरवर्ड विद द प्रोजेक्ट, राइट. तो दो मीटिंग्स तक रहता है एंड देन यू नो के व्हाट इज नेसेसरी, राइट. फिर आप उनको एज अ एक्टर कम देखते हो, एज अ पर्सन कम देखते हो, फिर आप उसको अपना जो स्टोरी का कैरेक्टर है वैसे देखते हो, और जो आपका इंटरेक्शन है वो भी फिर उसी केमिस्ट्री के हिसाब से डेवलप होता है. और आपको ट्राई भी यही करना चाहिए कि आप सून एज पॉसिबल उनको जो भी उनका पर्सोना है उनसे थोड़ा दूर जाके आपके कैरेक्टर के हिसाब से मोल्ड करने की कोशिश करें. लास्ट सेशन में जब हेलो, एम आई ऑडिबल? या लास्ट सेशन में नवागत सर से जब फिल्म इंडस्ट्री और इन सब के बारे में बात हुई थी, तो उन्होंने एक पॉइंट बताया था कि वो काफी समय बाद इंडस्ट्री के बाहर के लोगों से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं अभी सेशन में उन्होंने बोला था. तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब एक आदमी फिल्म इंडस्ट्री में एंटर हो जाता है तो उसके आसपास या वो कहीं भी जाता है, कैसे भी जाता है, तो उसको उसके टाइप के लोग मिलते हैं या इंडस्ट्री से जुड़े ही लोग मिलते हैं. तो क्या आप उसमें आप हमेशा एक्टिव फील करते हैं? कभी कभी ऐसा भी लगता है कि यार बहुत एग्जॉस्टिव हो रहा है वो शेड्यूल कि हमेशा एक टाइप के आदमी मिल रहे हैं या फिर फिल्म इंडस्ट्री से ही जुड़े आदमी मिल रहे हैं? आई थिंक आपको ये रियलाइज होता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आपको आपको ना एक पॉइंट पे जाके ही वो रियलाइज होता है, एंड वो रियलाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है. सी दैट इज द ट्रूथ फॉर एवरीवन. अगर आप टीचर हो तो आप स्कूल में किड से आप स्टूडेंट से मिलोगे और टीचर से मिलोगे. इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ दैट इज द ट्रूथ, राइट. बिकॉज इनहेरेंटली हमारा ह्यूमन नेचर ही वही है कि हम जो भी काम लेते हैं उस काम में इतने एनग्रोस हो जाते हैं कि वो हम आउटसाइड वर्ल्ड को भूल जाते हैं. इफ यू रियली लव दैट वर्क, राइट. अगर आप कोई भी काम ले लीजिए, अगर हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर काम कर रहा है, सो हॉस्पिटल में वो मेनली उनके जो कलीग है वही उनके फ्रेंड्स है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है मोस्टली बाहर जाके इंटरेक्ट करने का. सो आई थिंक इट्स नॉट जस्ट ओनली फिल्म इंडस्ट्री, जो भी ऐसे फील्ड है वहां पे ये फैक्ट है. आई डू मिस इंटरेक्ट विथ आउटसाइड पीपल, बट वो तो नेचुरली होता है, जब होना है तब होता है. बट वैसा नहीं है कि भाई हम कुछ मेजर पार्ट ऑफ द लाइफ ऐसा कुछ आप मिस कर रहे हो वैसा. Because you have fun anywhere you go, you have fun. It's up to you कि आप कौन सा conversation start कर रहे हो. I know some people, उनका थोड़ा ये हैबिट बन जाता है कि भाई वो फिल्म्स के बारे में ही बात करते हैं, बुक्स के बारे में बात करते हैं, सिनेमा आर्ट के बारे में बात करते हैं, तो वो प्रॉब्लम है शायद. बट अगर आपका कन्वर्जेशन और आपके जो सर्कल्स हैं वो ओपन है तो आपको ऐसा फील नहीं होगा फिर. ओके, तो I would ask Grishma Didi to put forth her question. Yeah. Hello, sir. Hi. Grishma here. How are you? Yeah. I'm good. Yeah. Okay, sir. Sir, my first question goes like, sir, as you have both the compilations or foundations, I would say. You have a book
on the basis of which you are writing your dialogues. And next is you have a commercial litigation foundations on which you have to cope with that. So I want to know that when you undergo with that process, do you have any writer's block there? And if yes, then how do you deal with it? See, writer's block you deal with every time. I think writer's block is थोड़ा ना exaggerate किया हुआ terms है for me, to be very honest, because ना सबने उसको इतना romanticize कर दिया है कि वो writer's block मैं आगे लिख नहीं पा रहा हूँ, right? You go with any good writers. आप see, my one of the favorite sci-fi writers is Isaac Asimov, right? He was very productive in his life. He wrote more than 100 big novels and everything, right? How? Because वो एक simple brain process है. See, if you stick with one thing constantly, आपको जो out of the box solution चाहिए वो मिलेगा नहीं. Your mind needs some rest. So what Isaac used to do, he used to work with a 12 project at a time. जैसे ही उसको एक प्रोजेक्ट पे टायर फील होता था, जैसे उन्होंने राइटर ब्लॉक हिट किया, he jumped to next one. So back of his head, वो जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर वो सोच ही रहे हैं. आपको पता नहीं है, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो भी आपने is more like super computer, to be very honest, right? आपने जो भी डेटा फीड किया है उसका प्रोसेसिंग चल ही रहा है वहां पे. आपको कॉन्शियसली उसको स्टेयर करने की जरूरत नहीं है. ये जो राइटर ब्लॉक है ना वो वैसा है कि आपने प्रोसेसिंग में डाला है और अभी आप स्टेयर कर रहे हो. 50% हुआ, 60% हुआ, कब होगा, कब वो होगा, right? You just have to be patient with it. Meanwhile, you go ahead and do your other work. तो वो होता है, एवरी टाइम होता है. मैं तो बोलता हूँ वीक में 1-2 बार ऐसा दिन आता है जिस दिन आपको काम करने का मन नहीं कर रहा है, आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है. तो स्टेप बैक, टेक सम टाइम, डू सम अदर वर्क, रीड समथिंग एल्स, एंड ऑटोमेटिकली यू बी सरप्राइज्ड, योर माइंड विल थ्रो 3 सॉल्यूशन टू, राइट? एक नहीं, 3 सॉल्यूशन देगा आपको. बट जस्ट बी पेशेंस अबाउट इट. एंड पीपल मेक मिस्टेक दैट दे गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि नहीं मिल रहा है, कैसे नहीं मिल रहा है, अरे थोड़ा टाइम तो दो. So I deal that way. That is my process. I that works for me. I can't say about everyone else, but that works for me. Okay, that's so good to listen. And so my next question goes like, so let's say like you have to, when you have a situation like you have to write dialogues based on a book. Okay, so there's some voice. Okay, no issues. So if you have to write dialogues based on a book, and let's say if I give you a very old book which was written on a totally different or opposite the circumstances or societal conditions, then how do you manage to write that, or do you change the societal plots, or do you continue with that particular plot, or do you try to modernize the whole story, or what do you do then? See, इसमें ना पूरा चेन रिएक्शन होता है. पहला, जैसे आप बुक को अडॉप्ट कर रहे हो, लाइक लेक्चर, जैसे कि आप शेक्सपियर का कोई भी प्ले लेके अडॉप्ट कर रहे हो, राइट? तो पहला डिसीजन आपने डायलॉग के लिए नहीं लिया है, पहला डिसीजन आपने अपना स्टोरी वर्ल्ड के लिए लिया है. अगर मानिए कि आपने अपनी स्टोरी को पूरा ही ट्रांसफॉर्म करके प्रेजेंट टाइम में लाया है, तो आपके डायलॉग एनीवे चेंज होने वाले हैं. सो डायलॉग इज नेवर इंडिपेंडेंट डिसीजन. वो तो एक सब डिसीजन है जो थर्ड स्टेज पे आता है. देन स्टोरी के बाद अपने कैरेक्टर का नेचर चेंज करते हो. क्या आपने जो भी हैमलेट है या जो भी क्या आपका कैरेक्टर था उसको आपने सेम रखा है या उसको आपने भी बदल दिया है? अगर बदला है तो उसके डायलॉग उस हिसाब से चेंज होंगे. सो ये मल्टीपल प्रोसेस के थ्रू जाके आपको फाइनली पता पड़ता है कि आपको इसके लिए कौन सा अप्रोच लेना है, राइट? एंड मेनली अभी ऐसा थोड़ा होता है कि चाहे आप उसी एरा की फिल्म बना रहे हो, चाहे आप 14th सेंचुरी की. राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन बाहुबली, राइट? बाहुबली का जो एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीजन आने वाला है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, राइट? लेकिन उसमें डायलॉग्स हम इतने महाभारत एरा के या फिर 11th सेंचुरी के इतने नहीं लिखेंगे कि अभी के जो यूथ ऑडियंस है उसको समझ नहीं आए, राइट? वी हैव टू कनेक्ट विद देम एज वेल. दैट इज व्हाई जो भी अच्छी हिस्टोरिक सीरीज होती है, जैसे कि आप गेम ऑफ थ्रोन्स का एग्जांपल ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो, उसके डायलॉग आपको प्रेजेंट टाइम में रेजोनेट करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट टाइम का जो भी सिनेरियो है ना, उसको उस भाषा में कन्वर्ट करके आप कैरेक्टर से बुलवाते हो, ताकि अभी का जो प्रेजेंट टाइम ऑडियंस है उसके साथ कनेक्ट कर पाए. तो वैसा मिक्स अप्रोच लिया जाता है डायलॉग्स के लिए.
Okay, sir. I And hope sir, this one more. answers your question. Yeah. Yes, for sure. So one more question, like जैसे जब we associate art with freedom, like where there is art, we need freedom to perform, or we need freedom to express it. And when you are writing based on a based on a particular book, you are very confined. So don't you feel like it's like bounding your freedoms, or making boundaries? And then if it is so, how do you manage or cope up with it? Then As I think I tried to answer this in the first question. That depends on how is your initial agreement with who's the person who's owner of that material, right? मानिए कि आपका बुक है और हर्ष उसको एडॉप्ट कर रहा है, राइट? तो आपके और हर्ष के बीच में जो भी डिस्कशन हुआ है कि मैं आपकी बुक को इतना वेरिएशन के साथ चेंज करने वाला हूँ, right? If you agrees, then Harsh still have an option to carry forward with it. If you don't, then he can always say no, right? तो ये जो लिबर्टी है ना, वो प्री डिसाइडेड होती है, वो बीच में नहीं आती है कहीं पे. सो मानिए कि अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मैं किसी बुक को अडॉप्ट करने जा रहा हूँ, आई पर्सनली फील कि दिस पार्ट ऑफ द बुक वोंट वर्क, आई विल गिव माई रीजन टू दैट ऑथर कि भाई क्यों ये वर्क नहीं करेगा, क्यों मुझे उसके चेंजेस करने पड़ेंगे. एंड इफ ही डज नॉट अग्री, देन आई डिसाइड टू स्टेप बैक. तो फिर आप स्टेप बैक ले लीजिए, बिकॉज अदरवाइज आप अपना जो एक ऑथेंटिक है या उस मटेरियल के साथ भी आप ऑनेस्ट नहीं रह पाएंगे, आप खुद के साथ भी ऑनेस्ट नहीं रह पाएंगे. वो मुझे लगता है वो इनिशियल स्टेज पे डिसाइड हो जाता है. okay, so thank you. Yeah. That's it from my part. Over to you, Harsh. Thank you. Am I audible? Yeah. सर आई हैव अ क्वेश्चन कि एक बार मैंने एक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वल्लभ खत्री, जो करेंटली लिटिल थिंग्स के सीजन 4 के लिए काम कर रहे हैं उस वाले क्रू के साथ. तो उनसे मैं एक बार ही मतलब पर्सनली टच में हूँ पिछले 1 साल से. तो उनसे मैंने एक बार पूछा था कि अगर मैं एज अ राइटर मतलब किसी मूवी को अप्रोच करता हूँ कि मैंने जो मूवी देखी हुई है लेकिन मुझे स्क्रीन प्ले राइटिंग सीखनी है, मतलब इस एज पे, इस पर्टिकुलर स्टेज पे जहां मैं अभी हूँ, साथ ही साथ जो मैं अभी कर रहा हूँ उसके साथ साथ मुझे थोड़ा थोड़ा सीखते जाना है कैसे लिखते हैं. तो उन्होंने मुझे बोला था कि कुछ मूवीज होती हैं जैसे लंच बॉक्स है, मसान है, इनकी जो स्क्रिप्ट होती है वो फॉर्म मतलब ऐसे स्नैप्स फॉर्म में नहीं, प्रॉपर डायलॉग्स फॉर्म में नेट पे अवेलेबल होती है. तो वो पढ़ के सीखा जा सकता है कि कैसे फिल्म में कैसे अप्रोच किया हो राइटिंग को. तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसके अलावा भी कोई और तरीका है या फिर ये कितना इफेक्टिव तरीका है? ये बहुत इफेक्टिव तरीका है. ये अभी नया तरीका है. अर्लियर क्या करते थे, अर्लियर जो पुराने थोड़े राइटर्स से लेट्स जस्ट से 15-20 इयर्स बैक, राइट, उनके पास ये पीडीएफ फॉर्मेट की स्क्रिप्ट जो अभी, एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप देखिए एवरी ईयर जब ऑस्कर आता है, जब नॉमिनेशन डिक्लेयर होता है, तो उसमें जो बेस्ट स्क्रीन प्ले जिनको नॉमिनेशन मिला है वो सारी स्क्रिप्ट, ऑलमोस्ट सारी स्क्रिप्ट आपको विद इन 15 डेज नेट पे मिल जाएगी. यू कैन गो थ्रू इट, यू कैन एनालाइज दो स्क्रिप्ट, यू कैन रीड इट, राइट. अर्लियर इतना नहीं था. तो वो लोग क्या करते थे कि फिल्म देख के जितना भी फिल्म याद रहा है उनको, राइट, वो घर आके लिखते थे विद डायलॉग्स कि उनको कितना याद रहा है. नेक्स्ट डे वापस वो फिल्म देखते थे, वापस लिखते थे. वैसा कर करके वो लोग प्रैक्टिस करते थे. दैट्स हाउ दे लर्नड इट. We are very fortunate, and sometimes it's happened that when you have more resources, na, people tend to become lazy. तो अभी available है तो कोई इतना पढ़ता नहीं है. But that's a very nice way to learn screenwriting. And अगर आप प्रोफेशनल वे में आपका अगर मेन स्ट्रीम की तरफ रुझाव है, मेन स्ट्रीम की तरफ आपका लगाव है, तो आपको बहुत सारी उसकी बुक्स भी अवेलेबल है जो आप पढ़ सकते हैं, राइट. वो बुक पढ़ के आप जब ये स्क्रीन प्ले गो थ्रू करेंगे ना, तब आपको और भी ज्यादा समझ आएगा कि व्हाई दिस थिंग हैपन एट दिस स्टेज, राइट. ये पहले 15 मिनट में क्यों हुआ, ये लास्ट के 30 मिनट में क्यों हुआ, ये जो हीरो की चॉइसेस है वो कहाँ से आती है, राइट. बहुत सारी बुक्स हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं और फिर आप स्क्रीन पे पढ़िए. दोनों का कंबाइन मिला के आप करेंगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत ग्रो करेगा इसके लिए. सर एक मूवी आई थी आई थिंक लास्ट ईयर, थप्पड़.
उसमें मतलब मैं अगर थप्पड़ की स्टोरी लाइन देखूं तो टू बी ऑनेस्ट मतलब मेरा पर्सपेक्टिव ये था उसको देखने के बाद कि बहुत ही क्लीशे स्टोरी के बेसिस पर अगर मैं बोलूं, बड़ी मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म की स्टोरी थी, लेकिन उसका डायरेक्शन इतना अच्छा था कि वो मेन स्ट्रीम स्टोरी नहीं लगने दी उनने। उसके अलग अलग एंगल्स दिखाए, इनकेस सबने देखे हो तो मतलब मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैं हॉल में देखने गया था थिएटर में, तो मेरे पीछे से कुछ लोग बोल रहे थे कि वो थप्पड़ मारा उसने, एक ही थप्पड़ ही तो मारा है, क्या ही है, यू नो, दे वर वेरी वेरी कैजुअल अबाउट इट कि ठीक है ना, उस पर मूवी बनाने की क्या जरूरत थी और इतना बड़ा चढ़ा के दिखाने की क्या जरूरत थी। बट मैं जिस तरीके से मूवी देखी, मैंने देखा कि उसमें जो अलग अलग कैरेक्टर्स थे, सबका क्या रोल था, कि ये कैरेक्टर अगर नहीं होता तो मूवी क्या होती। ये मेरी पर्सनली अप्रोच थी उस मूवी को थिएटर में देखने की, कि अगर मान लो तापसी पन्नू है वो ठीक है, उसके अलावा जो दूसरा कैरेक्टर है, कोई भी वकील था उसमें जो, या फिर मानव कौल जी थे, उनकी वाइफ उसमें जो लॉयर रहती है, और उनका जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया है कि शी इज वेरी यू नो बोल्ड वुमन बट देन समहाउ शी हैज हर ओन इश्यूज इन अ फैमिली एंड प्रोफेशनल इश्यूज। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक मेन स्ट्रीम राइटिंग पीस को या बहुत ही क्लीशे राइटिंग पीस को डायरेक्टर के पर्सपेक्टिव से आप कैसे चेंज कर सकते हैं कि वो क्लीशे ना लगे। ये आई थिंक ये बहुत ही पर्सनल लेवल डिसीजंस होते हैं। सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आपको कोई आइडिया क्लिक करता है कि मुझे इस पे फिल्म बनानी है, राइट, सो आपको पहले से ही पता है कि कौन सा एस्पेक्ट है जो आपको इतना पर्सनली टच हुआ है कि यू रियली वांट टू मेक अ फिल्म आउट ऑफ इट, राइट। सो जो आप बोल रहे हो ना कि थप्पड़ी तो मारा है, इतनी कौन सी बड़ी बात है, राइट, लेकिन वो वही तो फिल्म में है, राइट, वो भी खुद बोलती है ना जो मेन कैरेक्टर है, तो नहीं मार सकते ना, राइट। सो द थिंग्स आर व्हिच इज टेकन फॉर ग्रांटेड, उसी को क्वेश्चन करना, ये उनका अप्रोच है, राइट। अब अलग कहानी को, किस कहानी को अलग तरीके से कहना, कैसे कहना, वो आपको हजार लोग हजार चीज अलग अलग तरीके से बताएंगे, बिकॉज ये बहुत ही वाइड चीज हुआ, राइट। थप्पड़ अगर कोई और बनाता तो कोई बहुत ही अलग तरीके से बनाता, राइट, कोई दूसरा डायरेक्टर शायद ना भी बनाता, कोई उसको और अच्छे से बना देता, क्या पता। तो ये इसका कोई पर्टिकुलर फिक्स आंसर नहीं है कि हाउ टू यू नो टेल द स्टोरी इन डिफरेंट वे। नॉर्मली ये होता है कि आप कोई भी सब्जेक्ट लेते हो, सी सिनेमा एग्जिस्ट ऑलमोस्ट मोर देन 100 ईयर नाउ, राइट, तो हर स्टोरी वन वे और अनदर वे में कहीं जा चुकी है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि भाई एक सिंपल ही आपका एक मार्क होता है कि ये सब्जेक्ट है, ये मेरी कहानी है, क्या ऐसा मटेरियल पहले एक्सप्लोर हुआ है, अगर हुआ है तो उन्होंने कहाँ जाके एक्सप्लोर किया है, राइट, उन्होंने कौन से एस्पेक्ट है इस कहानी के वो एक्सप्लोर किए हैं, और जो एंगल नहीं एक्सप्लोर हुए हैं वो फिल्म में दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर ये आपका आंसर है, मानिए कि अगर ये आपको क्लिक करता है, देन यू गो अहेड एंड मेक योर फिल्म। बाकी तो ये इसका बहुत वेरी रहता है पर्सन टू पर्सन। Okay, I got my answer. So I would ask Pratisha Patel to put forward questions. Good evening, sir. Yeah. Am I audible? Yeah. Hello, sir. It's meeting you. Nice meeting you. So my question is, I'm audible. So my question is, as you said, ki movie. Hello. So you're not audible. Sweet. Hello. Am I audible? Can you hear me now? Yeah, Yes, sir. I fine. can hear you. Am I audible? Hello. Yeah. Yes. Sir, as you said कि मूवी में और नोवेल में डिफरेंस होता है, so what's the basic thing we should be remember while writing movie script or novel? ये बहुत बेसिक लेवल पे मैं आंसर दूं इसका, तो आपको पहला ये याद रखना है कि स्क्रीन प्ले आप रीड भले ही कर रहे हो, बट एंड ऑफ द डे वो विजुअल में ट्रांसफॉर्म होने वाला है। सो व्हाट एवर यू रिटर्न इन द स्क्रीन प्ले इज लाइक मोर ऑफ
sorry, I got one call, that's all. It's whatever written in the screenplay is a more of a description of images which going to be recreated according to those descriptions, right? जो आपकी स्टोरी है वो नॉवेल में ये नहीं है. नॉवेल में आपको जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है, जो भी आपके वर्ड्स हैं, उससे जो रीडर है वही अपना वर्ल्ड क्रिएट करने वाला है, राइट? उसमें थोड़ा बहुत लिबर्टीज चलता है. जब आप सिनेमा में जब आप फिल्म की स्क्रिप्ट की बात कर रहे हो, उसमें बहुत ही प्रिसाइज आपको बताना पड़ता है. अब लेट्स जस्ट से, और उसमें बहुत सारी चीजें भी अपने आप इन्वॉल्व हो जाती है, फ्रॉम द प्रोडक्शन टू द एक्टर्स, एवरीथिंग. ये बहुत ही डिफरेंट वर्ल्ड बन जाता है, राइट? जब आप नॉवेल लिखते हो